अब तक लाए हैं ओम साई स्पोर्ट वाशेरे ऑर्गेनाइज धनेश कप 2022। इसके कहते हैं खालिक हैं धनेश कप चषक वाशेरे 2022 में आप सभी का हार्दिक स्वागत। स्पॉन्सर क्रिकेट दुनिया का बड़ा नाम और भिवंडी के विजय मालिया, पांडुरंग धर्मा पाटिल, साथ ही साथ जो सबके लिए खास वो है अपना विश्वास पाटिल और तमाम वाशेरे ग्रामस्थ। खेल की शुरुआत होती भी टॉस को जीता इस वक्त यहाँ पर माहिरा स्पोर्ट्स ने अमीदुज़्ज़मा फैम टीम है और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। मेरे साथ वो आवाज़ जिन्होंने टेनिस दुनिया को एक नई पहचान दी, वो आवाज़ वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या जुड़ चुके हैं। खेल की शुरुआत होती हुई दोनों ओपनर महिंद्रा स्पोर्ट के पास ये रिकॉर्ड है कि इस सीज़न में उन्होंने एक सेमीफाइनल ज़रूर खेला है। बैक टू क्रिकेट नाउ, टू ओपनर्स ऑन द ग्राउंड। शेखर दलवी, one of the great experienced player with Vijay. These two are the openers. Is going to be Abu Saad open the bowling attack in first mandatory power play. The next match between Aman Sport and Bunty Sport, Nilesh Desle fam team and Gulam Sabir fam team. First ball try to cut dash ball away from the off stump. Bowsing Dusra Molla, white signal from umpire. Mahindra Sport off the mark with extra. And here we watch Abu Saad turn from washer end. This time try to drive thick outside edge. Rose to fly slip, but with the stroke batsman through for one. Shekhar Dalvi off the mark with one, and his score is 2 without loss. Siddiq, I think two different balls by Abu Saad in two deliveries. So you can certainly expect another surprise from him. Yes, I think he have ability. In previous season, before this season, Abu Saad claimed the first hat-trick in BC4 format. Played for SK Enterprises. Here he go. This time a lovely looking on drive, but fielder find the ball at long on, and with the stroke batsman through for one. Vijay Pardi off the mark with one. The local boy man from Jamunpada. Both batsmen off the mark with single, and his score is 3 without loss. Abu Saad. Balls to Shekhar, beautifully played in the gap, but equally stopped from the fielder, left of him, and with the stroke batsman through for one. Floodlight is on now, and Harish, I think, runs getting difficult for batsmen. At the same time, stroke selection is also equally important. I think if you play the right shot at the right time, we saw Azhar Ansari, the way he played, he was able to hit six, he was able to cut, he was able to sweep. So stroke selection will be also equally important here. Yes, absolutely true. Abu Saad. Balls to Pardi, beauty. Swinging Yorker just past the stump. What a good comeback from Abu Saad. Abu Saad showing his experience. Look at the way he came running in, steaming in, and a beautiful action and a fuller length ball reminding me of Michael Whitney of Australia, taking a jump and bowling those leg cutters. I think has got a fantastic leather ball cricket experience as well. So is Shekhar Dalvi. Great bowling. Here goes Abu Saad. Ball short, rising. Batsman try to very fine glance of his hips, which in the air and of the surface. Lovely ball indeed. I think that was a arm delivery. Yes, and that was perfectly pitched on the leg stump, a playable delivery. Although batter Vijay Pardi had a look at the umpire for a wide ball, but umpire denied.
This time, balloon in the air. A fine effort from the fielder, but didn't carry there. And with the stroke, batsman threw for one. No footwork behind the stroke. Leading edge. Yes, but I think a brilliant attempt there by Myra Sports fielder. And that is what you got to do. Keep trying because you got to convert half chances into full chances. And that was a brilliant attempt, although he could not take the catch. But a beautiful attempt. एक ओवर की समाप्ति 5 रन गजब का ओवर किया अबू साद ने। ऑन फील्ड अंपायर की मालूमात के लिए जब आपको ज़रूरत रनआउट की पड़ सकती है तो आप ले सकते हैं, और बीमर की भी सुविधा दोनों टीमों के लिए उपलब्ध है। एक रिव्यू जो आपको दिया गया है, एक ओवर की समाप्ति 5 रन बिना कोई विकेट के। आप देख रहे हैं क्रिकेट का इंद्रधनुष धनेश कप वाशेरे 2022 ओम साई स्पोर्ट्स वाशेरे की देन। खेल की शुरुआत होती हुई तलोली एंड से देखना है मोर्चे पे किसको लगाया जा रहा है। देखिए हरेश, रात जैसे जैसे होंगी यहाँ पर जो टारगेट है वो थोड़ा घटते जाएगा। गेंदबाजी में अमीदुज्जमा है टीम के कैप्टन, टीम के स्पॉन्सर। बीपीएल में उन्होंने बॉल आउट में हिस्सा लिया था। पहली गेंद तान दिया आसमान में और गेंद स्क्वायर लेग के खिलाड़ी के हाथों में कैद होती हुई, और ये है वो कंडीशन जिस पे गेंद बाहर नहीं गई। डीप में क्या कहेंगे हरीश? देखिए गेंद बाउंड्री तक कैरी नहीं हो पाई। लोअर फुल टॉस में हमने देखा पायनियर ने भी अपने काफ़ी विकेट्स खोए, और यहाँ पर लोअर फुल टॉस देखिए सबसे बड़ी बात है कि विजय पारदी अमीदुज्जमा अंसारी की पहली बॉल पर न सोचे समझे अटैक करने गए। सबसे बड़ी बात है कि नया गेंदबाज जब आता है उसको देखो, परखो, समझो, फिर अटैक करो। लेकिन पावर प्ले था, विजय पारदी अटैकिंग बैटिंग के लिए जाना जाता है, और शॉट अच्छा खेला था लेकिन ना ऊंचाई मिली ना अंतर नाप पाए, और विजय पारदी वहां पर आउट होकर वापस लौटे। अमीदुज्जमा अंसारी ने अपनी टीम के लिए बहुत ही जबरदस्त आगाज। अगली दो टीमों को टॉस के लिए आना है। आउट हमारे जुड़ चुके हैं महिंद्रा स्पोर्ट्स के कॅप्टन विजय। काय झालं, चुकीचा स्ट्रोक लागला की काय, म्हणजे कशासाठी? इझी खेळलो, थोडा ताकदमधून खेळत होता। काय वाटतंय किती रन्स पर्यंत करू शकता या पिचला बघून? 50+ गेला तरी काढू शकतो आम्ही। थँक्यू सो मच विजय। ओवर टू यू कमेंट्री बॉक्स। इट्स ऑलराइट रेशमा मैकर। नए बैट्समैन शेखर दलवी का साथ निभाने सुरेश पारदी, बहुत ही मशहूर ऑलराउंडर और बहुत अच्छे टच में है। ये गेंद बल्ले का बाहरी किनारा, आउट हो गए शेखर दलवी, और जश्न देखिए अमीदुज्जमा का। अपने आप को, और यही कारण था कि सस्ते में आउट हो गए शेखर दलवी। अमीदुज्जमा अंसारी ने गेंद को एक और अच्छा पिच किया। देखिए पिछली बार लोअर फुल टॉस, इस बार बॉल को पिच कराया। अमीदुज्जमा अंसारी अपने बचपन के क्रिकेट के दिनों को याद कर रहे। स्टिक टू द बेसिक्स। अगर अल्फ़ाबेट्स ABCD ही होते हैं, जो बंदिश होती है सारे का पता नहीं सा होती है, और क्रिकेट में बॉलिंग लाइन और लेंथ पर होती है। अमीदुज्जमा अंसारी जो है ये लाइन और लेंथ पर बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग करते हुए और कॉट बिहाइंड में गिरता हुआ विकेट। देखना है क्या कहते हैं वहां पर। आणि आपल्यासोबत जॉईन झालेल्या दळवी शेखर, काय सांगायचंय, कुठे नाईट चालू आहे, पहिले फर्स्ट मॅच खेळतो आम्ही, नाईटची टुर्नामेंट आहे, त्याच्यामुळे जरा बॉल साईड नाही होत। काय वाटतं किती पर्यंत रन्स काढू शकते या पिचला बघून? 50+ लावण्याचा प्रयत्न करू, तेव्हा आम्ही डिपेंड करू शकतो। थँक्यू शेखर। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू रेशमा। 5 रन 2 विकेट, क्या गेंदबाजी हो रही है। इस तरह की गेंदबाजी मानो बल्लेबाजों को घुटने पे ला रखती। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को सुरेश पारदी का साथ निभाने के लिए आए हैं।
इस मरतबा कंट्रोल शॉट, हैट्रिक को बचाया, वहां पर ऑन साइड में मोड़ दिया, 1 रन बना। दूसरे की दौड़ लगाते हुए 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। 2 रन से खाता खुलता हुआ वहां पर बैट्समैन का। राहुल आए नए बैट्समैन और फिर से हमसे जुड़ चुके वो पर्सनालिटी जो क्रिकेट के लिए सब कुछ दाव पे लगा दे। भिवंडी के विजय मालिया, हमारे अपने आपके सबके पांडुरंग धर्मा पाटिल। अमित इस मरतबा नीचे बैकलिप का इस्तेमाल, गैप में ड्राइव किया, 1 रन बना है और दूसरे की दौड़ लगा चुके। रॉन्ग एंड थ्रो, 2 रन पूरे। ये सही बल्लेबाजी राहुल की, गेंद के मेरिट पे बल्लेबाजी कर रहे। बिल्कुल सिद्दीक भाई, देखिए जैसा हमारी बीपीएल में भी बात हुई थी कि गेंदबाज के हर गेंद के लिए एक स्ट्रोक है और बल्लेबाज के हर स्ट्रोक के लिए एक गेंद है। अगर आप उसके ऊपर अमल करेंगे तो अमूमन 10 में से 9 बार आप कामयाब होंगे। अब वहां पर बल्लेबाज को पता है रन कैसे निकालने हैं, कहाँ खेलना है, जो अच्छी बात रहेगी महिंद्रा स्पोर्ट्स के लिए। अमीदुज्जमा राइट आर्म राउंड स्टंप्स आते हुए, इस मरतबा हवा में स्ट्रोक, लेकिन कैच छूटा और सपना टूटा। और रिएक्शन देखिए अमीदुज्जमा का। अब इससे आसान कैच क्या मिलेगा? इतना आसान कैच तो नेट प्रैक्टिस में भी नहीं मिलता जो मैच में मिला था। और अगर ये कैच होता तो क्या बात थी। अमीदुज्जमा अंसारी के लिए ये मैच इतना यादगार हो जाता कि पूछो मत। देखिए मैच का रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन एज एन ओनर, एज अ सियासी लीडर, एज अ स्पॉन्सर, एज अ कैप्टन, अमीदुज्जमा अंसारी अपने क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं। अगले मुकाबले के लिए नीलेश देसले फैम टीम जो इस BC4 फॉर्मेट में 3 नंबर पर रैंक कर रही है। अंजुमन ट्रॉफी की विजेता 2 की रनर्स, उनसे 2-2 हाथ लेंगे अमान स्पोर्ट, गुलाम साबिर फैम टीम। दोनों टीम के कैप्टन को टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। अमीदुज्जमा बहुत ही इवेंटफुल ओवर चलता हुआ। LED स्क्रीन के सामने इस वक्त सबके खास हमारा विश्वास पाटिल, विवेक शेलार इस मरतबा बल्ले के फेस को खोला, गाइड ज़रूर किया था, गेंद को डिपिश गली में लगभग 1 रन। ये अच्छी सोच बैट्समैन सुरेश पारदी की, क्योंकि सुरेश पारदी के पीछे बहुत बड़ा अनुभव है। 2 ओवर की समाप्ति, टोटल उतना तो अच्छा नहीं है। ये आप देख सकते हैं भावेश पवार, हरफन मौला खिलाड़ी, विवेक शेलार। अभी अभी उन्होंने हरीश पंड्या आपकी उनकी जुल्फ़ों की बात की थी। कहा जाता है कि पेच उनकी जुल्फ़ का और बल मेरी तकदीर का, क्या मिला है सिलसिला जंजीर से जंजीर का। साथ में विश्वास पाटिल और तमाम वाशरे कर के लिए ये नया इतिहास है। डे नाइट की सूरत में आप देख रहे हैं 2 ओवर कुल मिलाकर रन बने 11, विकेटें गिरी है 2 और माहिरा स्पोर्ट आपने 2 ओवर के लिए समय लिया है 12 मिनट का। मेरे साथ वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या, को एंकर और क्वीन वॉइस आवाज़ की मलिका इस वक्त साइड लाइन पे रेशमा मेकर, और वॉइस ऑफ PTC योगेश पाटिल, कमेंटेटर शुभा धुमाल भी हमारे साथ। फ़िलहाल उनकी सेहत पूरी तरह सही नहीं है तो स्कोरिंग का काम अंजाम दे रहे हैं। और देखिए स्कोरिंग में बहुत बड़े नाम है। आफ्टर परवीन केडिया स्कोरिंग के बादशाह सरताज, साहिबा मोमिन, नैनेश्वर मागे बहुत ही मैच्योर्ड स्कोरर है, अल्पेश गायकवाड, राजू पाटिल बहुत सालों से स्कोरिंग कर रहे हैं, मिस्टर तांगड़ी फ्रॉम खारडी, काफ़ी नाम है जो बहुत अच्छा रोल, आसिफ रंगरेज युवा स्कोरर। बहरहाल चलते, ये कुमार गुंड एक अर्धशतक जड़ चुके हैं इस सीज़न में। सलमान अंसारी, धनेश है जहाँ सलमान है वहाँ। पांडुरंग धर्मा पाटिल और धनेश पाटिल
खेल की शुरुआत, अच्छी कप्तानी, अबू साद को कंटिन्यू रखा गया है, ग्लांस करने की कोशिश, वाइड। सुरेश पारदी का भी एक अलग अंदाज है बल्लेबाजी का। अगली दो टीमें अमान स्पोर्ट और बंटी, उसके बाद मैच ऑफ नाइट, मैच ऑफ इवनिंग, बालाजी बनाम आरडी 440, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस मरतबा स्टंप को कवर किया, धीरे से पुश किया गेंद को खाली क्षेत्र में और 2 रन बना लिए सुरेश पारदी ने। इसे कहते हैं गेंद की बिल्कुल मेरिट पे बल्लेबाजी करना। पारदी को पता है 2 बड़े स्ट्रोक्स गिर चुके हैं। आने वाले बल्लेबाजों में पप्पिया खारिक एक ऐसे बैट्समैन है जो डेथ ओवर के आज नहीं है टीम में, वाकई में उनकी कमी महसूस होंगी। लेकिन कहते हैं हरेश, जो हाजिर वहीं वजीर। इस मरतबा फिर पुश किया गेंद को, 1 रन बना, तब आपने गेंद को उठाया, इरादे को बदल दिया, 1 ही रन। ये देखिए हाँ ना चलती हुई, हाथों में गेंद लगी है। देखिए कुछ क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिनके लिए क्रैम्प्स और हाथों में गेंद लगना एक मसला बन जाती है, खासतौर से अबू साद उसमें काफ़ी ऊपर है। स्कोर 15 रन 2 विकेट। तमाम जायजा लिया जा रहा है, हालांकि यहाँ से साफ सुथरा टेलीकास्ट आप देख रहे हैं। हम तब तक वक्त है तमाम लोगों को थैंक्स कहेंगे जिन्होंने तन मन धन से सेवा की। टी शर्ट के लिए रघुनाथ पाटिल, एक्स सरपंच कुकसे, शिवसेना विभाग प्रमुख, विशेष धन्यवाद। भरत पाटिल, एक्स सरपंच कुकसे, बीजेपी लीडर, विशेष धन्यवाद। रविंद्र धर्मा पाटिल, विशेष धन्यवाद। प्रकाश राजन पाटिल, विशेष धन्यवाद। आनंद धर्मा पाटिल, आपका विशेष धन्यवाद। BC4 सिटी क्रिकेट में फर्स्ट प्राइज के लिए ईगल ग्रुप पड़गा, आपका विशेष धन्यवाद। सेकंड प्राइज के लिए मनोहर भोईर, भोईरपाड़ा, आपका विशेष धन्यवाद। अब उसाद की गेंद बोल्ड अराउंड द लेग्स, डंडा गया सैर करने। क्या कहेंगे हरेश? मुझे तो वाकई में सुल्तान ऑफ स्विंग की याद आ गई। दैट इज द लीथल यॉर्कर। मतलब ये गेंद पे अगर आपने इलाज सही समय पर नहीं किया, इफ यू आर नॉट एबल टू प्ले इट देन यू आर गॉन। और देखिए वहां पर बेल्स भी जल उठे और आउट होकर वापस लौटना पड़ रहा है बैटर को। परफेक्ट बॉल अबू साद द्वारा, उंगलियों पर लगी हुई चोट जो है उसके मलाल को कम करता हुआ खतरनाक यॉर्कर। आणि डगआउट मध्ये आलेले आहेत राहुल, तो नाही होगा। काय झालं? परफेक्ट यॉर्कर बॉल होता, खेळताना आला, खाली राहिला। काय वाटतं आत्ताची स्थिती बघून किती रन्स पर्यंत काढण्याचा प्रयत्न असेल दोन्ही प्लेयर्सना? पण चांगले बॅट्समन आहेत, 50+ जाणार। जाणार नक्की। चला ओव्हर टू यू कमेंट्री बॉक्स। धन्यवाद रेशमा। आकाश मागे और वैभव मागे ने जयेश शेलार के लिए सिक्सर के लिए हैट्रिक के लिए 1000 रुपये रखे। इस मरतबा बहुत खूबसूरत गेंद कट के अंदर की जानी भाई थी, पिछले पांव पे चले गए थे बैट्समैन। देखिए हरीश, पिछली इनिंग में नज़र आया था, हालांकि बहुत अच्छी अजहर ने बल्लेबाजी की थी, लेकिन जैसे जैसे रात डलेंगी इस विकेट पे बल्लेबाजी इतनी आसान नहीं रहेंगी। नहीं, और जीवन में देखिए सिद्दीक भाई, आसान क्या है? क्या बात है, कुछ भी आसान तो नहीं है। बिना कुछ किए एक ही चीज होती है, बालों का डेंड्रफ। बाकी हर चीज में मेहनत है। बिल्कुल, कोरोना के बाद तो मुश्किलें और बढ़ गई। यॉर्कर लेन की गेंद थी, खोद के निकाला, वी की शक्ल में, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री से खिलाड़ी आए, सुस्ती भरी फील्डिंग, 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने।
अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट हम देख रहे हैं। कुल स्कोर 17 रन 3 विकेट। थोड़ा धीमा क्रिकेट चलता हुआ। साथ ही साथ ग्रामीण ओपन के लिए फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर नामदेव पाटिल साहब खांडवाल, एक्स सभापति भिवंडी पंचायत समिति, आपका विशेष धन्यवाद। सेकंड प्राइज के लिए मगन कालेकर और गोरख पाटिल, आपका विशेष धन्यवाद। फुल टॉस गेंद खेल दिया लॉन्ग ऑफ पे। ये खिलाड़ी 10 कदम आगे क्या कर रहे थे? ये कौन सी फील्ड पोजीशन है? ये कोई पोजीशन है? ना आप डीप मिड ऑफ पे हैं, ना सर्कल में, ना आप लॉन्ग ऑफ पे हैं। बाबू खान थे वहां पर, लेकिन बाबू खान ने ये चौका दिया है, ये महंगा पड़ सकता है। ये कोई फील्डिंग पोजीशन नहीं थी जहां पे वो खड़े थे। तीन विकेटें गिरी है। अभी भी हम सोच सकते हैं कि महिंद्रा स्पोर्ट की वो शुरुआत नहीं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। आप देख रहे हैं क्रिकेट का इंद्रधनुष धनेश कप वाशरे 2022 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ओम साई स्पोर्ट वाशरे ऑर्गेनाइज एंड स्पॉन्सर बाय पांडुरंग धर्मा पाटिल एंड विश्वास पाटिल एंड देयर्स फ्रेंड्स। तमाम वाशरे ग्रामस्थ, वाशरे की तमाम जनता का भी हम विशेष धन्यवाद करते हैं। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए आकिब खान। आकिब खान के नाम 27 साल का बॉलिंग का इतिहास है। 2 ओवर 1 मेडन 2 रन और 8 विकेट। समय में कॉपरेट करें, आपको 30 मिनट का समय दिया गया है। अगली 2 टीमों को टॉस बॉक्स में बैठना है, आमान स्पोर्ट और बंटी स्पोर्ट। आकिब खान इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर वाइड से शुरुआत। बाएं हाथ के बैट्समैन सुरेश पारदी, जय शेलार एक चौका जड़ चुके। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस मरतबा धीरे से हवा में खेला, लेकिन कैच नहीं था वहां पर, बन सका 1 रन बनता हुआ। स्कोर 23 रन 3 विकेट। तेईस रन 3 विकेट। समय में कॉपरेट करें महिंद्रा स्पोर्ट। जय शेलार सामना कर रहे आकिब खान का। चौथे ओवर का खेल चलता हुआ। स्कोर है 23 रन 3 विकेट। इस मरतबा खींच के मारा है, चाबुक शॉट है, नहीं रुकेगा। 6 रन। और बैक स्ट्रोक खींच के मारा, पुल पावरफुल, वंडरफुल, सक्सेसफुल। 6 रन। इस सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 29। यतीश शेलार है हमारे बीच में, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। 29 रन
3 विकेट। क्या कहेंगे हरीश? वन मैन आर्मी का रोल अदा कर रहे हैं लोकल बॉय जयेश शेलार। डेफिनेटली देखिए, जब क्रिकेट 11 खिलाड़ी खेलते हैं, जब आपके 3 बेहतरीन खिलाड़ी आउट हुए हैं, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, ये कहने की ज़रूरत है कि अगर मुझे आपने टीम में लिया है, मेरे पे भरोसा रखिए, मैं भी क्रिकेट जानता हूं, मैं रन बना के दिखाऊंगा। और वही काम यहां पर करते हुए जयेश शेलार, 4 बॉल 12, अच्छा स्कोर है, 300 का स्ट्राइक रेट। और ये पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। सुरेश पारदी थोड़ा वेट एंड वॉच वाला गेम खेल रहे हैं। आकिब खान, अच्छी वापसी, स्विंगिंग यॉर्कर था, बल्ले की जड़ से गेंद लगी, शॉर्ट थर्ड पे पहुंची, कोई रन नहीं। ये रहता है एक अच्छा क्रिकेट। इस तरह की नोक-झोंक जब चलती है तो मैच देखने का मज़ा ही कुछ और होता है। तू मैं चलती हुई नोक-झोंक, ये सारी नोक-झोंक आप देख रहे हैं धनेश कप 2022 में। आकिब खान, फुल टॉस गेंद, बॉलर बैक ड्राइव, कोई रन नहीं। जबरदस्त क्रिकेट चलता हुआ चौथा ओवर, और कहीं ना कहीं 60 की तरफ देखना होगा अगर चुनौतियां देना है, क्योंकि बॉलिंग बहुत अच्छी है महिंद्रा के पास। अख्तर शेख, सुरेश पारदी, दीज टू आर दी वेरी फेमस बॉलर। आकिब खान लेफ्ट आर्म राउंड स्टम्प्स, इस मरतबा खड़े खड़े खेला, टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने गेंद आने का इंतजार किया और 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। स्कोर इन 2 रन से 31 रन, 3 विकेट, 31 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। ओवर नंबर 4 चलता हुआ। आकिब खान लेफ्ट आर्म राउंड स्टम्प्स आते हुए, इस मरतबा उछाल दिया है, क्या गेंद मैदान के अंदर? यस, लॉन्ग ऑन पे आउट हो गए शेलार। तिलक तिलक बदला गया। उन्होंने कुल 14 रन बनाए और 7 गेंदों का सामना किया। इस वक्त एकमात्र बल्लेबाज जो रन बना के साइड लाइन पे रेशमा मेकर से जुड़ते हुए। आणि आपल्यासोबत जॉईन होत आहे जयेश शेलार। जयेश, होम ग्राउंड होत, थोडस काय काय मिस्टेक झाली? काय नाही, ताकद कमी पडली थोडी. नेक्स्ट मॅच मध्ये बोनविटा पिऊन यायला पाहिजे का? नाही असं काही नाही. काय वाटतंय किती रन्स पर्यंत होऊ शकतात? काय वाटतंय बघून? प्लस बघा, सगळ्यांनी 50+ सांगितलंय, बघूया 50+ होतात की नाही. ओव्हर टू यू कॉमेंट बॉक्स. खेल की शुरुआत हो रही है और माइक्रोफोन पे वो आवाज़, पबजी के लोग जितने दीवाने नहीं उतने हरीश पंड्या की कमेंट्री के दीवाने। टिकटॉक आके चला गया लेकिन इनकी टॉक का कोई तोड़ नहीं। वॉइस ऑफ इंडिया, हरीश पंड्या। शुक्रिया। नेवर की शुरुआत करते हुए यहाँ पर पहली गेंद पर 1 रन लिया है सुरेश पारदी ने। दूसरे का मौका बन रहा है। सुरेश पारदी स्वयं बॉलर है, तेज कदम भागते हुए रनआउट की अपील और पारदी आउट। मायरा स्पोर्ट्स की फील्डिंग अब इंप्रूव हो चुकी है। जिस तरह से वो थ्रो आया था, तेज तर्रार, देखिए ये सारा एक्शन रिप्ले बताया जा रहा है। गेंद को उठाया, थ्रो किया, पैरेलल थ्रो, ये आप चाहते हैं थ्रो इस तरह का है, और सुरेश पारदी के लिए दरवाजे बंद। धुम्मा बह गई।
त्या स्कोरची गरज 50 प्लस पाहिजेतच, त्याच्यामुळं मॅच जरा इझी होईल. ओवर टू यू कमेंट्री बॉक्स. अगली गेंद इस बार पैर के ऊपर आक्रमण था, शफल होकर खेलने का प्रयास और लेग बाय का इशारा. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 पर 5, 33 फॉर 5. आप देख रहे हैं ओमसाई स्पोर्ट्स वाशेरे आयोजित धनेश चषक वाशेरे 2022. आज के शेड्यूल का ये तीसरा मुकाबला. इसके बाद 4 मुकाबले और रहेंगे. कल 8 मुकाबले, जिसमें आप एक रायगढ़ थाना का मैच भी देखेंगे. इस बार बेहतरीन बॉल ओवर पिच थी, अप एंड अबोव द बॉलर साइड खेल दिया और ये लगा बेहतरीन चौका. नितिन की गेंद बिल्कुल जोन में आई थी और बॉलर के सर के ऊपर से लगने वाला वो बेहतरीन चौका पुनेश का. पुनेश इस बार फिर से स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, प्लेइंग विद स्ट्रेट बैट जिसको कहा जाता है. 1 रन मुकम्मल किया और 1 ही बना पाएंगे. फील्डिंग अब बेहतर हो रही है मायरा स्पोर्ट्स की. मायरा स्पोर्ट्स ने अब तक अच्छी मेहनत की है, लेकिन आखिरी 2 ओवर जो स्लॉग ओवर्स कहे जाते हैं उसमें मायरा एडवांटेज नहीं खोना चाहेगी. जो पहले कुछ कैचेस छूटे, वरना ये स्कोर 30 के आसपास होता. 38 फॉर 5. तेज तर्रार, तीखा तेवर, स्नॉर्टर. लेदर बॉल जब इस तरह ट्रैवल करती है उसको स्नॉर्टर कहा जाता है. बिल्कुल उस तरह की गेंद, अनप्लेबल, अनमैचेबल. और तुरंत दोनों बैटर आपस में बात करते हुए कि क्या हो रहा है. तेज गेंदों को साइड करना ये बहुत बड़ी चुनौती है. 38 फॉर 5. इस बार एक और बेहतरीन गेंद. क्या जबरदस्त स्पेल कर रहे हैं नितिन. वाकई में काबिले तारीफ गेंदबाजी नितिन की. और एक बेहतरीन ओवर उन्होंने समाप्त किया. आखिरी ओवर की तरफ अब तवज्जो करते हुए नितिन 1 ओवर 6 रन और इसमें विकेट भी उनको मिला. पुनेश 2 बॉल 5, वैभव 3 बॉल 0. ये प्रतियोगिता आप लोगों तक लेकर आ रहे हैं सम्माननीय पांडुरंग धर्मा पाटिल, ओम साई वाराई प्रेसिडेंट, विश्वास अनंता पाटिल माजी सरपंच वाशेरे और विशेष सहकार्य वाशेरे ग्रामस्थ. टी शर्ट के हमारे स्पॉन्सर है रघुनाथ पाटिल, एक्स सरपंच कुकसे, शिवसेना विभाग प्रमुख. टी शर्ट के हमारे अन्य स्पॉन्सर है भरत पाटिल, एक्स सरपंच बीजेपी कुकसे. टी शर्ट रविंद्र धर्मा पाटिल, प्रकाश राजन पाटिल, आनंद धर्मा पाटिल, इनका विशेष आभार. भिवंडी BC4 सिटी फॉर्मेट के पहले इनाम के स्पॉन्सर है ईगल ग्रुप पड़गा और दूसरे इनाम के स्पॉन्सर है मनोहर भोईर, भोईरपाड़ा कुक से. नए ओवर की शुरुआत आकिब खान इसके पहले 1 ओवर कर चुके हैं और अपने उस 1 ओवर में 10 रन देकर 1 विकेट लिया था. आकिब के गेंद उल्टा पुल्टा शॉट खेलने का प्रयास. क्या तेज ट्रैवल हो रही है. सीमेंट का पिच है और सीमेंट के पिच पे ये फर वाली टेनिस बॉल को ट्रैवल कराना ये भी एक स्किल है. मैं तो भारत सरकार को दरख्वास्त करूंगा कुशल भारत कौशल्य भारत के अंदर बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग की कोचिंग को भी शामिल किया जाए. इट इज अ स्किल. इस बार ब्लाइंडर कैच था, बिल्कुल बाएं हाथ में ताली मारती हुई गेंद नीचे गिरी. वहां पर 1 को 2 में तब्दील करने का प्रयास और यह विकेट. हमीदुज्जमा अंसारी अपने आप को पूरी तरह झोंकते हुए गेंदबाजी में, क्षेत्र रक्षण में. हमीदुज्जमा अंसारी. और यही तो खूबसूरती है क्रिकेट की. स्ट्रोक कोई भी गलत नहीं था, ब्लाइंडर कैच था, लेकिन यहां पर रनआउट का विकेट. 0 पर आउट हुए वैभव. लगातार 3 डॉट बॉल उन्होंने खेली. 39 फॉर 6. नए बल्लेबाज राजा. इसके पहले वाले मैच में भी हमने राजा देखा. इस बार क्रॉस बैटेड शॉट, प्लेसमेंट अच्छी रखी है. पहले रन को पूरा किया, दूसरे की तेज दौड़ लगाते हुए बैटर्स और ये यहां पर दूसरा पूरा कर लेंगे.
स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40। चालीस पे 6। क्या खूबसूरत टी शर्ट के कलर्स है सुभाष धुमाड़। अगर आप देखेंगे पर्पल कलर के टी शर्ट को जब आप देखते हैं ना तो एक अलग मज़ा रहता है। और वाइट एंड वाइट में अगर आप देख रहे हैं वैनिला आइसक्रीम की याद आ जाती है। इस बार एक और बेहतर बॉल टप्पा खाकर बाहर निकाला। माहिरा स्पोर्ट्स ने तैयारी की है। जी हाँ, 2022 का साल हमारा है। हम टीम लेकर आए, हम ताजगी लेकर आए हैं। हम माहिरा स्पोर्ट्स है, हम क्रिकेट खेलने आए हैं। 40 for 6। आकिब की गेंद, एक और तीखा तेवर। नितिन के बाद आकिब खान अब जलवा दिखाते हुए गेंदें टप्पा खा रही है, विकेट कीपर के हाथ में जा रही है। मानो कंपाउंडर की लिखावट को डॉक्टर ही पढ़ सकता है या मेडिकल स्टोर वाला पढ़ सकता है। नितिन और आकिब खान की गेंदों को केवल विकेट कीपर पढ़ पा रहा है। 40 पर 6। खराब गेंद, फुल टॉस रही। आमिद उज़्ज़मा अंसारी के बाजू से गुजरता हुआ ये चौका हो जाएगा। जी हाँ, ये 4 रनों का स्वागत और स्कोर फाइनली आगे बढ़ता हुआ 44 रन 6 विकेटों के नुकसान पर मैच जीतने के लिए माहिरा स्पोर्ट्स को चाहिए 45 महेंद्र स्पोर्ट्स के सामने। आइए अगले मैच के टॉस की तरफ रुख करते हैं जहां खेलने वाली टीम है अमान स्पोर्ट्स और बंटी स्पोर्ट्स। रिक्वेस्ट असेल दोन्ही टीम्सच्या कॅप्टन्सना की त्यांनी टॉस बॉक्स मध्ये जॉईन व्हायचं आमच्या सोबत। फारूक बर्डी जी, सर आपको रिक्वेस्ट है कि मैच रेफरी फारूक बर्डी जी, आपको रिक्वेस्ट होगी कि आप भी हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए टॉस बॉक्स में। दोस्तों, इस वक्त स्वर्गीय हरिदास लक्ष्मण पाटिल टॉस बॉक्स में हम खड़े हैं। हमारे साथ मैच रेफरी फारूक बर्डी, अपने ज़माने के मशहूर मारूफ क्रिकेटर और अंपायर, और दोनों टीमें, दोन्ही टीम्स आपल्या सोबत आहेत। गुड इव्हनिंग लेडीज अँड जेंटलमॅन। पुन्हा एकदा जितके प्रेक्षक आम्हाला बघतायत आपलं मनापासून स्वागत आहे। मॅच नंबर 4 बंटी स्पोर्ट्स वर्सेस अमान स्पोर्ट्स आणि कॉल असेल अमान स्पोर्ट्सचा। डू दी ऑनर। ये सिक्का दूर चला गया। चला पुन्हा एकदा आपण टॉस करतोय। तो टॉस को इस वक्त जीता है बंटी स्पोर्ट्स ने। बंटी स्पोर्ट्स सर्वप्रथम अभिनंदन नाणेफेक जिंकण्यासाठी। काय निर्णय घेतलाय? आम्ही पहिले बॅटिंग करू। भिवंडी शहरामध्ये डेच्या स्पर्धा भरपूर होतात। डे अँड नाईटचा आता एक चांगला फॉर्मॅट बघायला मिळतो या स्पर्धेच्या माध्यमाने। रात्री इथे मैदानावर येऊन रात्री क्रिकेट खेळायचं, घरचे लोकसुद्धा बघतील, कसं वाटतंय? या सीझनमधली पहिली नाईट टुर्नामेंट आहे आय थिंक सिटीमधली, सो एक्सायटेड आहे आणि चांगली आयोजन केलेलं आहे। आणि गोलंदाजी करत असताना एखादं उद्दिष्ट, बॅटिंग करत असताना मात्र एखादं उद्दिष्ट आहे का? 40, 50, 60, 55 प्लस जाण्याचा प्रयत्न करू मी। धन्यवाद। अमान स्पोर्ट्स के कैप्टन हमारे साथ है। अमान स्पोर्ट्स, टॉस कितना जरूरी था? टॉस जीतता तो मैं भी फील्डिंग लेता। क्या बात है, मतलब वो बैटिंग ले रहे हैं, आप फील्डिंग ले रहे हो, मतलब दोनों टीम्स खुश है, तो हमें एकदम जोरदार मुकाबला यहाँ देखने मिलने वाला है। बंटी स्पोर्ट एक बहुत अच्छी टीम है, हम लोग 101% देंगे हराने के लिए। कितने तक का टारगेट सोच रहे हो कि सामने वाले को रोक सकोगे? कितने तक? 50 के अंदर। 50 के अंदर। क्या कहना चाहोगे, ये जो टूर्नामेंट है आज का पहला दिन है धनेश ट्रॉफी 2022 के बारे में? बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। क्या बात है, थैंक यू सो मच। सो न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स, बंटी स्पोर्ट्स वॉन द टॉस एंड चूज टू बॅट फर्स्ट। बघूया किसकी होती है जीत और किसकी होती है हार, पण त्याआधी आपण वळणार आहोत पुन्हा आपल्या ऑनगोइंग मॅचकडे। ओव्हर टू यू कॉमेंट्री बॉक्स। धन्यवाद हरीश पंड्या सर आणि धन्यवाद रेश्मा मयेकर। दरम्यान या स्पर्धेचं भरभरून कौतुक केलेलं आहे।
खंडवळ ग्रुप ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच सन्माननीय विलासजी पाटील यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेला आणि खास करून विश्वासजी पाटील आणि पांडुरंगजी पाटील यांना मात्र या ठिकाणी हार्दिक शुभेच्छा आलेल्या आहेत. धन्यवाद विलासजी पाटील, तुमचंसुद्धा मी मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. तर पहिल्या डावमध्ये आपण जर पाहिलं तर महिंद्रा स्पोर्ट भातवड संघाने मात्र बॅटिंग केली आणि बॅटिंग करत असताना या संघाने 6 गडी गमावले आणि मात्र धाबा जोडल्या 44 आणि हा सामना जिंकायचा असेल तर मात्र या ठिकाणी महिंद्रा स्पोर्ट संघाला 45 धाबांचा मात्र पाठलाग करावा लागेल. आइए दोस्तों, लौट चलते हैं क्रिकेट के इंद्रधनुष शो में, धनेश कप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. मेरे साथ जुड़ चुके हैं पीटीसी की बहुत ही मधुर आवाज़. देखिए योगेश पाटिल, मैं दिल से कहता हूँ, आप पूरे पीटीसी इलाके को पूछिए. ऐसा नहीं, आपने BC4 में भी बहुत कमेंट्री की है कि जिस तरह आकाशवाणी पे कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जहाँ पर लता मंगेशकर या मोहम्मद रफ़ी का गाना ना गूंजा हो, लेकिन पीटीसी में भी कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा है जब योगेश पाटिल की आवाज़ ना गूंजी हो. क्या बात है, तारीफ के लिए शुक्रिया सिद्दीक बाबे सर. तर 45 धाबांचा इथे मात्र पाठलाग करायचा आहे, तो म्हणजे महिंद्रा स्पोर्ट भिवंडी संघाला. आणि सलामी जुडी आपल्याला पाहायला मिळते ती म्हणजे सुनील पाटिल आणि जमा. देखना है कि जमा के बारे में अजय गरत बहुत अच्छा कहते हैं, सदाबहार कमेंटेटर महाराष्ट्र के. जमा से अच्छा चॉप स्ट्रोक कोई नहीं खेलता है. पहली गेंद फ्लिक कर दिया पैरों के सामने, ऑफिस हिप्स मिड विकेट की तरफ. 1 रन से खाता खुला यहाँ पर सुनील पाटिल का. जमा अंसारी मेरे साथ इस वक्त योगी हैं, योगेश पाटिल. 45 रन का लक्ष्य. कभी कभी ऐसा होता है ना योगी कि छोटी चीज़ नज़र आती है, बन जाता है पहाड़. आणि कधी असं होतं की ज्या ज्यावेळी लो स्कोरिंग सामने असतात ते सामने इंटरेस्टिंग होत असतात. आणि पाहूया तशाच प्रकारचा सामना इथे मात्र आपल्याला पाहायला मिळतोय का. गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त सुरेश पारदी, बहुत ही अनुभवी गेंदबाज. और पड़गा और उसके परिसर का नाम सुरेश पारदी ने बहुत ऊंचा किया है. मैंडेटरी पावर प्ले का पहला ओवर, फील्ड की जमावट, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्मेन, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑन स्ट्रेटिश है, मिड ऑफ भी स्ट्रेटिश है. सुरेश पारदी लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए इस मरतबा कट किया गेंद को. थोड़ा सा फंबल ज़रूर हुआ है लेकिन अच्छा बैकअप. अमीदुज़्ज़मा 1 रन से खाता खोलते हुए. टीम के कैप्टन, टीम के ओनर आप देख रहे हैं ओम साई स्पोर्ट्स वाशेरे का अद्भुत शो. क्रिकेट का इंद्रधनुष धनेश कप 2022 वाशेरे में आप सभी का हार्दिक स्वागत. सुरेश पारदी लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए. पटकी भी गेंद, मिसक्यू शॉट है लेकिन कोई खिलाड़ी नहीं. नो मैंस लैंड में गेंद तब तक उठाते फील्डर. 2 रन बना लिए बैट्समैन सुनील पाटिल ने. कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 पे पहुंचा है. दरम्यान या ठिकाणी वाशिरगावचे सन्माननीय प्रभाकरजी शेलार यांचं इथे मात्र शुभागमन झालेलं आहे. तुमचं मी हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. त्याचप्रमाणे चौदरपाडा गावचे एक लेजंड खेळाडू अर्थात निलेश जाधव यांचंसुद्धा इथे मात्र शुभागमन झालेलं आहे. आपलंसुद्धा मी मनापासून या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत करतो. यस, तमाम सम्मान चिन्ह
मोमेंटोज हमें रामचंद्र मागे साहब ने स्पॉन्सर किए हैं, उनका भी विशेष धन्यवाद। बढ़िया गेंद कान के पास से चली गई, कहती हुई तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। राइजिंग एंड सरप्राइजिंग डिलीवरी, ये देखिए, जस्ट पास दी एयर। वंडर बॉय ऑफ भिवंडी जयेश पाटिल जुड़ चुके हैं, मोस्ट वेलकम। कुछ खिलाड़ी रहते हैं जो लोगों के जहन में बैठ जाते हैं। फिर से नेस्टी बाउंसर, कमाल की फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं सुरेश पारदी। याच गोलंदाजीसाठी मात्र सुरेश पारदीला ओळखला जातोय, कारण घाट का पाणी पिया आहे असा हा खेळाडू तुम्ही पाहू शकाल। महाराष्ट्र राज्यात नव्हे तर महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेर जाऊन सुद्धा टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून एक वेगळी छाप सोडली आहे, तो म्हणजे गोलंदाज सुरेश पारदी। काय जबरदस्त गोलंदाजी या ठिकाणी पहिल्या पिटूच्या ओव्हरमध्ये करत असताना सिर्फ घाट का पानी नहीं पिया है, बल्कि घाट का अच्छों को पानी भी पिलाया है सुरेश पारदी। कमाल की रफ्तार, देखिए उनके पास एबिलिटी है, वेरिएशन पे तुरंत ही पलट जाते हैं। पारदी मुड़ते हुए, स्विंग एंड मिस, बढ़िया ओवर, भले से विकेट नहीं लिया लेकिन बांधे रखा बल्लेबाजों को। 1 ओवर 5 रन और 5 ओवर में 40 रन चाहिए। म्हणजे ज्या षटकाची आवश्यकता होती या महिंद्रा स्पोर्ट संघाला, तो षटक मात्र सुरेश पारदीच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळालं। दरम्यान या ठिकाणी आमनेपाड्याचे विद्यमान उपसरपंच सन्माननीय योगेशजी गुरुनाथ जाधव आणि MD स्पोर्ट आमनेपाड्याच्या वतीने या स्पर्धेला हार्दिक शुभेच्छा आलेल्या आहेत। धन्यवाद, आपलं मी मनापासून हार्दिक स्वागत करतो। यस, VIP डाइस पे वो 2 पर्सनालिटी है जिन्होंने ये शो अब तक लाया है। भिवंडी के विजय मालिया, पांडुरंग धर्मा पाटिल, सब लोगों में खास वो है अपना विश्वास। माजी सरपंच वाशरे विश्वास पाटिल, को एंकर रेशमा महकर, ये आप देख सकते हैं। भावेश पवार हरफन मौला खिलाड़ी, सलमान अंसारी, पांडुरंग धर्मा पाटिल, वंडर बॉय भिवंडी जयेश पाटिल, विश्वास पाटिल और प्रिंस ऑफ भिवंडी विवेक शेलार, और साथ में परी। और साथ में कल्पेश माली को भी हम देख रहे हैं, कल्पेश पाटिल को हम देख रहे हैं। ये देखिए रेशमा महकर आजकल क्रिकेट की आवाज़ बन चुकी है। भावेश पवार हर फन मौला खिलाड़ी। आणि त्यांच्या बाजूला तुम्ही पाहू शकाल ज्यांच्या वडिलांच्या माध्यमातून दुसऱ्या क्रमांकासाठी आपल्याला कॅश प्राइज लाभले आहेत, त्यांचे सुपुत्र सुजित कालेकर आणि निश पाटिल हे सुद्धा उपस्थित झालेले आहेत। आपलं सुद्धा मी मनापासून हार्दिक स्वागत करतो। गेंदबाजी के लिए विशाल पारदी, पहली गेंद ड्राइव किया, बहुत खूबसूरत अंदाज से, बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, ओवर थ्रो हुआ है, बैकअप अच्छा नहीं, 2 रन बना लिए बैट्समैन सुनील पाटिल ने। इसे कहते हैं ज़बरदस्त क्रिकेट। 2 रन से 7 पे पहुंचा है माहिरा स्पोर्ट्स का स्कोर, 7 रन। कल दोस्तों तैयार हो जाइए, रायगढ़ बनाम ठाणे, जयेश पाटिल, भावेश पवार, श्याम चौधरी, विवेक शेलार, ये भिवंडी के सितारे रायगढ़ के सामने। और पड़गाड़ उसके परिसर में पहली मर्तबा ये मैच होने जा रहा है। स्विंग एंड मिस, क्या लगता है योगी, पारदी बरदस्त पे ज़्यादा भरोसा कर रही है यहाँ पे महिंद्रा स्पोर्ट? हो नक्कीच। आणि या सत्राचा आपण जर भावीसर विचार केला तर पडगा परिसरातील जास्त खेळाडू महिंद्रा स्पोर्ट भादवड संघामध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। म्हणजे ही सुद्धा एक मोठी उपलब्धी म्हणेन की पडगा परिसरातील सर्व खेळाडूंसाठी। सुनील पाटिल, डेविड वार्नर ऑफ भिवंडी, इन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है महिंद्रा स्पोर्ट्स का, माहिरा स्पोर्ट्स के, सॉरी सुनील। इस मर्तबा मिस की हुक शॉट है, गेंद आसमान में और आउट हो गए सुनील पाटिल।
आपण बड़ा जर झटका लगता हुआ ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के मारने की कोशिश, ऊपर लगी, आसमान में खड़ी रह गई। और फ्लड लाइट में कैचेस इतने आसान नहीं रहते। परंतु नक्कीच कौतुक करावं लागेल ज्याप्रमाणे हा झेल तिथे मात्र समाप्त केला। कुक्षेगावचे युवा पोलीस पाटील प्रमोदजी काशीनाथ पाटील यांच्या वतीने या स्पर्धेला आणि येणारा पुढील सामन्यासाठी अर्थात बंटी स्पोर्ट कुकचे बोरी संघाला हार्दिक शुभेच्छा आलेल्या आहेत। धन्यवाद पोलीस पाटील, आपलं सुद्धा मी मनापासून हार्दिक स्वागत करतो। कल दोस्तों हमारे साथ जुड़ जाएंगे आईपीएल की मखमली आवाज़ कुणाल दाती जी कमेंट्री में। लेकिन इस वक्त नए बैट्समैन जुड़ते हुए बल्लेबाजी के लिए तौसीफ काजी भी बहुत ज़्यादा हिटिंग में भरोसा करते हैं। और नेहा तलवार को इन्होंने ही कहा था कि आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी। कट करने की कोशिश, वाइड घोषित किया, बल्ला ज़रूर चलाया था। 1 रन और आता हुआ मायरा स्पोर्ट्स के खाते में, 8 रन 1 विकेट। अगला मुकाबला जहाँ पे टॉस जीता है बंटी स्पोर्ट्स ने और बल्लेबाजी का फैसला किया है। नीलेश देसले फैम टीम नंबर 3 पे रैंक कर रही है। नंबर 1 पे आरडी है, नंबर 2 पे धनेश, नंबर 3 पे बंटी, नंबर 4 पे साइंस खारबाव, नंबर 5 पे सुरेश पाए और नंबर 5 पे पॉइनियर और नंबर 6 पे सुरेश पाए। इस मरतबा पुल करने की कोशिश, ऊपर लगी है, एक और विकेट। शॉर्ट पिच गेंदें लगातार हो रही है और आउट हो रहे बैट्समैन। आज जमणार मेळ, रंगणार खेळ, गाजणार वाशेराचे मैदान। जमणार मेळ, रंगणार खेळ, गाजणार वाशेराचे मैदान। देखिए पार्टनरशिप का पनपना बहुत ज़रूरी है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ओडीआई में सबसे बड़ी पार्टनरशिप क्रिस गेल और शैमुल्स के नाम है 372। और टेस्ट क्रिकेट में 624 की पार्टनरशिप संगाकारा और महिला जयवर्धने। ओवरऑल BC4 सिटी क्रिकेट की पार्टनरशिप का जो रिकॉर्ड है वो जाता है शाहिद खान और करेश मात्रे के नाम। बाली ट्रॉफी 2019 13 डिग्री सेल्सियस में 126 रन की पार्टनरशिप। ओवरऑल अगर पूरे सिटी क्रिकेट की हम बात करें योगी, तो सबसे ज़्यादा एक सीज़न में कप जीतने वाली टीम धनेश कुकसे है। 2019-20 में उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा था, कुल मिलाकर 15 कप। बढ़िया गेंद, फिर पटका था। देखिए योगी, आप फास्ट गेंदबाज हैं, तेज़ गेंदबाज, तो आपके पास शॉर्ट पिच गेंदों का भी खजाना चाहिए। ये देखिए बैट्समैन घूमे ज़रूर थे और आपके पास यॉर्कर भी चाहिए। ओवरऑल अगर पूरे दौर की बात करूं मैं, तो 2000 तक चैलेंज के लिए कोई भी चैलेंज नहीं आया। उसके बाद जय दुर्गा चैलेंज के लिए चैलेंज बनी। उसके बाद कारियोली का भी एक दौर आया। उसके बाद सनी स्पोर्ट्स छाई और फिर बी इंडियन आई। फिर से तेज़ गेंद, अच्छी रफ्तार निकाल रहे हैं गुड लेन पे पड़ने के बाद। 2 ओवर की समाप्ति, रन बनाना बहुत कठिन हो रहा है। कोई केवल 8 रन है और 2 विकेट हैं। देखिए एक दौर ऐसा था कि स्वयंभू पायगांव टॉप की टीम रही थी। बात थी 2008-9 और 9-10। 10-11 में फिर महेंद्रा स्पोर्ट्स का दौर चला। फिर वहाँ से बी इंडियन ने पलटवार किया। 13 तक उन्हीं का दौर रहा। 14 में विकी स्पोर्ट कुकसे ने एंट्री की, उनका दौर चला। 14-15 तक उनका दौर रहा। 16-17 में महेंद्रा स्पोर्ट फिर आई पिक्चर में। 17-18 में फिर आई धनेश। फिर 17-18 में 16-17 में फिर आई बी इंडियन। फिर अगर हम 18-19 की बात करें तो दौर तो वहाँ पर धनेश का ही रहा। 19-20 तो ऐसा दौर धनेश का था जिसकी कोई तोड़ नहीं। लेकिन 20-21 में मौली स्पोर्ट आई और 21-22 में तो घमसान मचा है। क्या धनेश आगे, क्या बंटी आगे, क्या आरडी आगे।
पिछले धनेश कप की बात करूं मैं तो RD 4440 ने जीता था। रनर्स थी रईस बिल्डर एंड डेवलपर। पिछले धनेश कप के बेस्ट बैट्समैन वंडर बॉय जयेश पाटिल थे, बेस्ट बॉलर हिमांशु पाटिल, आलिमगढ़ एक्सप्रेस और मैन ऑफ द सीरीज थे कपिल केने। इस मर्तबा फिर ऊपर लगी है, क्या कैच हो पाएगा? मुश्किल अवसर था, कैच छूटा वहां पर और 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। सॉरी, सीरीज मैन ऑफ द सीरीज थे फाइक अंसारी थे मैन ऑफ द सीरीज। ये आप देख सकते हैं, जयेश पाटिल, पांडुरंग धर्मा पाटिल और सलमान अंसारी। और क्या बात है, अमान स्पोर्ट्स के हमारे बीच में यो आ चुके हैं सोमनाथ। इस मर्तबा कड़क शॉट है, क्या मैदान के बाहर? यस, 6 रन। ठाणे भिवंडी शहराची शान धनेश चषक हाय महान ठाणे भिवंडी शहराची शान धनेश चषक हाय महान ठाणे भिवंडी शहराची शान धनेश चषक हाय महान। हैंड आई कोऑर्डिनेशन लाजवाब, गेंद बल्ले से निकली, उस पे मोहर थी 6 रनों की। क्या शॉट खेला है योगी सैफ कुरैशी। ये देखिए, जोड़ी नंबर 1 को दिखाया जा रहा है टेनिस क्रिकेट की। को एंकर रेशमा महकर और वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या। ये भावेश पवार। इस मरतबा एलिवेशन नहीं है, खेलना चाहते थे गेंद को मिड विकेट पे, गेंद गई लॉन्ग ऑन पे, 1 रन आता हुआ स्कोर में। लेकिन अब शुरुआत माहिरा ने भी कर दी है। ये मुकाबला बहुत ही कट टू कट जाएगा योगी। कुल स्कोर 17 रन 2 विकेट। ओवर नंबर 3 चल रहा है। ये विवेक शेलार, बालों पे काफ़ी खर्चा है तो चर्चा होगा। हालांकि उनकी बालों में जुल्फ, वो कहते हैं जुल्फ उर्दू में, उनमें पेश नहीं है। ये वंडर बॉय भिवंडी जयेश पाटिल पिछले धनेश कप के बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। और पिछले धनेश कप, उससे पहले धनेश कप जो युतिका ने जीता था, महेंद्र मागे द फिनिशर ऑफ महाराष्ट्र की वो इनिंग कोई भी नहीं भुलाऊंगा जब उन्होंने 49 रन बनाए थे। इस मर्तबा गेंद को फ्लिक कर दिया, पीछे खिलाड़ी, फिर कैच छूटा। तौसीफ नसीब के साथ खेल रहे हैं। देखिए, भिवंडी प्रीमियर लीग में फास्टेस्ट 50 जो ये कुमार गुंड इस सीज़न में एक अर्धशतक लगा चुके हैं वडगर में। और वो जो भिवंडी प्रीमियर लीग की 50 लगाई थी महेंद्र मागे ने, वो ऐतिहासिक 50 थी। बॉल आउट में अगर खंडवाल टीम, इनके खंडवाल बाहर नहीं जाती तो मागे किसको भी आगे बढ़ने नहीं देते। सुरेश पारदी इस ओवर में महंगे साबित होते हुए कोशिश हो रही है माहिरा की तरफ से। बढ़िया गेंद, तेज तर्रार गेंद, झुक के खेलना चाहते थे, बीट हुए वहां पर सैफ। स्कोर है इस वक्त 18 रन 2 विकेट। वाकई में आज बहुत ही ज़बरदस्त रंग भरा हरीश पंड्या, रेशमा महकर और योगेश पाटिल ने। इस मर्तबा खींच के मारा है, क्या गेंद मैदान के बाहर, चाबुक शॉट, 6 रन। हे दिसाया साधा हँडसम आहे गोलंदाजी त्याची नारी हे दिसाया साधा हँडसम आहे गोलंदाजी त्याची नारी विवेक शेलार खालिंग गावाचा ठाणे जिल्ह्यान हायलय भारी। इसी ग्राउंड पे सरपंच चषक में सेमीफाइनल खेलने वाली टीम अब कठिनाइयों में। कुल मिलाकर रन बने 24, ओवर समाप्त हुए 3, मुकाबला
मुकाबला बराबरी पे चल रहा है। 20 रन 21 रन चाहिए 3 ओवर में, लेकिन सैफ कुरैशी तो मानो पीछे पड़ गए महिंद्रा स्पोर्ट्स के। पिछला मैच भी जय मसोबा पिंपलास ने जिस तरह पॉइनियर को हराया, पॉइनियर नंबर 4 पे रैंक कर रही है। यहाँ माहिरा अपना तीसरा टूर्नामेंट खेल रही है और तीसरे टूर्नामेंट में बढ़िया परफॉर्मेंस, काफ़ी मुस्कुराहटें बिखेरी जा रही है। हरीश पंड्या, आपके बगल में जो मुस्कुराहट है, मुस्कुराहट फरेब देती है, खैर उसको ये जेब देती है। माइक्रोफोन पे आ रहे हैं योगेश पाटिल। तर अतिशय जबरदस्त सामना इथे मात्र क्रीडा रसिकांना पाहायला मिळतोय, कारण टार्गेट पण जर पाहिले तर 45 धाबांचं टार्गेट आहे आणि या 3 षटकांची समाप्ती आपण जर पाहिली तर 24 धाबा इथे मात्र या ठिकाणी मायरा स्पोर्ट संघाने जोडल्या आणि येणाऱ्या आता मात्र 18 चेंडूमध्ये अजून विजयासाठी 21 धाब्यांची आवश्यकता। तालुका क्रिकेट के सबसे अच्छे फील्डर केतन पाटिल हमसे जुड़ चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। अतिशय जबरदस्त बॅटिंग तुम्हाला इथे मात्र सैफ कुरेशी यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली, कारण आतापर्यंत 2 षटकाराच्या माध्यमातून वैयक्तिक 15 धाबांवर खेळतोय। यस, कई मशहूर कमेंटेटर्स मैच को देख रहे हैं, सभी का हार्दिक स्वागत है। चाहे मनीष पाटिल कमेंटेटर हो, चाहे राजेंद्र पाटिल A1 एंकर हो, चाहे अंपायर शानू कुरैशी हो, सर्वांचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत। तर तिसऱ्या षटकाला मात्र गोलंदाज सुरुवात करेल महिंद्रा स्पोर्टच्या माध्यमातून अख्तर शेख। तर अख्तर शेख इथे मात्र आपल्या षटकाला सुरुवात करेल आणि पहिल्या चेंडूवर मात्र या ठिकाणी फटका हवेत केलाय, फलंदाजाने चेंडू हवेत आहे, स्वतः गोलंदाज चेंडू खाली झेल टिपण्याचा प्रयत्न करतो आणि मात्र झेल समाप्त होत असताना गडी इथे मात्र बाद होईल तौसिफ काझी। पाटील पाटील विश्वास पाटील ना केलं या आयोजन आज गणेश चषकचं आहे हो नंबर 1, आहे हो नंबर 1, आयोजन आहे हो नंबर 1। इस विकेट के बारे में तो मैं इतना कहूँगा, जिस तरह तौसीफ काजी आउट हुए, जब अख्तर शेख राजी तो क्या करे तौसीफ काजी। चांगल्या चेंडूची इथे मात्र फेकी पाहायला मिळाली आणि मात्र या चेंडूवर कुठेतरी तौसिफ काजीने मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु भरपूर वेळ चेंडू आपल्याला हवेत पाहायला मिळाला आणि कुठल्याही प्रकारची मात्र चूक केली नाही अख्तरने। योगी, आपको लगता नहीं कि अख्तर शेख जो कि विकेट टेकर गेंदबाज हैं, और आपने देखा कि BRPL में हर गेंदबाज पिट गया अख्तर को छोड़ के, इनको थोड़ा देरी से बुलाए। प्रत्येक कॅप्टनची एक वेगवेगळी रणनीती असते भावेश सर, आणि तीच रणनीती आता मात्र या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते महिंद्रा स्पोर्टच्या माध्यमातून। नवीन फलंदाज जीतू येतोय, इथे मात्र चेंडूचा पाठलाग केला, परंतु चेंडू आणि बॅटमध्ये कुठलाही संपर्क नाही आहे आणि या चेंडूवर आता मात्र पाहिलं तर पहिल्यांदा सैफ कुरैशी मात्र बीट होताना आपण पाहतोय। अच्छी वापसी वहाँ पर। अख्तर शेख देखिए बहुत ही अनुभवी गेंदबाज है और इस तरह की स्थिति में गेंदबाजी कर चुके हैं, परंतु इथे मात्र फुल टॉस चेंडू ऑन साइडला उडवला, गॅप सिलेक्शन चांगला चेंडू हवेत आणि झेल ड्रॉप। जर तुम्हाला या मॅचमध्ये कमबॅक करायचं असेल तर मात्र झेल तुम्हाला मात्र पकडावं लागतील। आपण नेहमीच म्हणतोय पकडा झेल जिंका क्रिकेटचा खेळ, कदाचित हा झेल टर्निंग पॉइंट सुद्धा होऊ शकेल। वहीं मैं कह रहा था कि देखना है कि क्या उन्होंने कैच छोड़ा है या मैच छोड़ा है। मिड विकेट पे कौन थे? राजकुमार। अब राजकुमार का राज कहीं बदल ना जाए, काफ़ी बदकिस्मत रहे अख्तर शेख। राजकुमार मॅन फ्रॉम आमनेपाडा, एक सहज सोपा झेल होता, परंतु त्याने झेल ड्रॉप केला आणि मात्र फलंदाज सैफ कुरैशीला मात्र जीवनदान देणं कुठे ते मात्र या ठिकाणी आपल्या स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेण्यासारखं इथे मात्र आपल्याला पाहायला मिळतोय। और राजकुमार MCA के अंपायर भी हैं। क्रिकेटर तो बहुत मशहूर है, अंपायरिंग भी बहुत मशहूर है उनकी। नक्कीच अतिशय चांगले प्रकारचे खेळाडू सुद्धा आहेत, परंतु त्याच्याकडनं मात्र ही चूक आपल्याला पाहायला मिळाली। धावसंख्या मात्र पुढे जात असताना 2च्या साह्याने 26 धावा।
अख्तर शेख पुन्हा एकदा मात्र मार्गस्थ होतोय. इथे मात्र फटका सुद्धा मात्र पाहिलं तर खूपच छान आहे, परंतु डीप मिडविकेटला मात्र क्षेत्ररक्षण तैनात आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहतोय आपण जय शिलारच्या माध्यमातून चांगली फेक पाहायला लावली. एक धाव इथे मात्र या ठिकाणी कुठेतरी विकेट्स घेणं गरजेचं आहे. तुम्ही जर विकेट्स प्राप्त केल्या नाही तर नक्कीच हा सामना कदाचित तुमच्या हातातून निसटू शकतोय. परंतु या ओव्हरमध्ये आपण जर पाहिलं तर कुठेतरी चांगली गोलंदाजी अख्तर शेखच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. 3 गडी बाद 27-45 धाबांचा इथे मात्र पाठलाग करतोय मायरा स्पोर्ट भिवंडी. आपण पाहता धनेश चषक 2022 ओमसाई वाशेरे आयोजित ही स्पर्धा 5 दिवसाची स्पर्धा. हा सामना समाप्त झाल्यानंतर जे ग्रामीणचे लॉट्स आहेत ते ओपन इथे मात्र पाडले जाणार आहेत. नेट टू नेट फाईट इथे मात्र पाहायला मिळते. इथे मात्र अकुट टप्प्याचा चेंडू, परंतु या ठिकाणी परफेक्टली टायमिंग मात्र झालं ना आणि त्याच मुळे चेंडू हवेत गेला आणि पुन्हा एकदा झेल ड्रॉप होत असताना खराब क्षेत्ररक्षण पाहतोय आपण. कारण तुम्ही जर अशा प्रकारे चुका जर केल्या तर तुम्हाला या स्पर्धेची तब्बल 1 वर्षभर वाट पाहावी लागेल. बिल्कुल, अगर ये मैच गवा दिया यहाँ पर महिंद्रा स्पोर्ट्स ने तो कसूरवार फील्डर रहेंगे. इसीलिए तो मैं कहता हूँ दोस्तों में कि आप बालों में जेल और हाथों में तेल लगाकर क्रिकेट ना खेले. शेखर दलवी होते त्या ठिकाणी आणि त्याच्याकडनं मात्र ही चूक पाहायला मिळाली. इथे मात्र चांगल्या चेंडूची फेकी, पंचांना मात्र ठिकाणी प्रश्न विचारला आणि मात्र त्रिफला उद्ध्वस्त केला गोलंदाज अख्तरने. या ओव्हरमध्ये मात्र दुसरा धक्का देत असताना आणि मात्र 3 षटकांची समाप्ती सुद्धा इथे मात्र होत असताना 4 षटकांची समाप्ती झाली आहे. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 4 गडी बाद 29 धावा. शुभा दुमाली बताइए कि यहाँ से कितने रन चाहिए? 16 रन. मैच अभी भी बना हुआ है. बहुत ही कट टू कट मुकाबला आप देख रहे हैं. धनेश कप 2020-22 वाशेरे में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. मैं उन लोगों को थैंक्स कहूँगा जिन्होंने इस कप में तन मन धन से हमारी सेवा की है. तमाम जो टी शर्ट स्पॉन्सर्स हैं हमारे, रघुनाथ पाटिल एक्स सरपंच कुकसे शिवसेना विभाग प्रमुख, भरत पाटिल एक्स सरपंच कुकसे बीजेपी लीडर, रविंद्र धर्मा पाटिल, प्रकाश राजन पाटिल, प्रकाश राजाराम पाटिल, आनंद धर्मा पाटिल, इन सभी का विशेष धन्यवाद. साथ ही साथ फर्स्ट प्राइज सिटी क्रिकेट का खेल फील्डिंग लगाना है, एम्पायर कह रहे हैं. फर्स्ट प्राइज सिटी क्रिकेट BC4 का हमें ईगल ग्रुप पड़गा ने दिया है, उनका विशेष धन्यवाद. सेकंड प्राइज BC4 सिटी मनोहर भोईर भोईरपाड़ा गांव से, आपका विशेष धन्यवाद. ओपन ग्रामीण का फर्स्ट प्राइज नामदेव पाटिल खंडवाल एक सभापति भिवंडी पंचायत समिति, आपका विशेष धन्यवाद. सेकंड प्राइज मगन कालेकर और गोरख पाटिल, आप दोनों का विशेष धन्यवाद. जबकि हमको मोमेंटोज स्पॉन्सर किए रामचंद्र मागे साहब ने, उनका विशेष धन्यवाद. हमारे बीच बहुत मशहूर हार्ड हिटिंग बैट्समैन आलम शेख आ चुके हैं, आपका इस्तेकबाल है. आणि त्यांच्या समवेत तुम्ही पाहू शकाल टायगर शॉपच्या प्रोपरायटर त्रिशूल ठाकरे यांचं सुद्धा मात्र शुभागमन झालेलं आहे. आपलं सुद्धा मी मनापासून हार्दिक स्वागत करतो. तर 12 चेंडू शिल्लक आहेत विजयासाठी. अजूनही मात्र 16 धाब्यांची गरज. आणि दुसऱ्या स्पेलमध्ये तुम्ही विशाल पाटीलला पाहणार आहात, कारण पहिल्या स्पेलमध्ये विशाल पाटीलने फक्त 3 धाबांचं षटक हाताळलं होतं. 2 गडी त्याने बाद केले होते आणि तोच गोलंदाज आता मात्र 5व्या षटकामध्ये आपल्या संघाची धुरा सांभाळेल. योगी ये ओवर दोनों टीमों के लिए करो और मरो का ओवर है. विशाल पाटील इथे मात्र मार्गस्थ होईल. इथे मात्र पहिला चेंडूवर मात्र आणि कडक प्रहार, चेंडू हवेत आणि त्यानंतर झेल सीमरेषी लगत ड्रॉप होत असताना आपण पाहतोय आणि चेंडू सुद्धा मात्र निघून जातोय सीमरेषीच्या पलीकडे 4 धाबांसाठी चौकार. आयोजित वाशेरे गावचा आहे तिथे हो मोठा मान. ओमसाई आयोजित वाशेरे गावचा आहे तिथे हो मोठा मान. देखिए फर्क क्या है. जय मसोबा पिंपलास ने सभी कैच पकड़े और महिंद्रा स्पोर्ट ने अभी तक सभी कैच छोड़े. 5 कैच छूटे हैं.
ये तो इससे खराब फील्डिंग क्या हो सकती है। और बॉटम एंड का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं सैफ कुरैशी, मैन फ्रॉम अपोली। काय खराब क्षेत्रक्षण पाहतोय आपण आणि झेल आपण जर पाहिलं तर एवढे कठीण झेल होते, अगदी सोपे झेल होते आणि मात्र ते झेल सुद्धा मात्र क्षेत्ररक्षक कलेक्ट करू शकले नाहीये. आणि हा सामना जर कदाचित जर महिंद्रा स्पोर्ट्स संघाने गमावला तर मात्र त्यांच्या क्षेत्ररक्षणाच्या मुळे मात्र सामना ते गमावू शकतील. काय जबरदस्त गोलंदाजी विशाल पाटील करत असताना पहिल्याच चेंडूवर कुठे मात्र विकेट्स टेकिंग गोलंदाजी येते मात्र चेंडूची फेकी केली होती परंतु त्याला साथ मात्र मिळाली नाही. आता मात्र पुन्हा एकदा फटका हवेत केलेला आहे, उंची जास्त मिळाली, अंतर कमी, क्षेत्ररक्षक पुन्हा एकदा चेंडू खाली, आता मात्र चुकीला माफी नाही आणि हा झेल टिपला जातो जय शेलारच्या माध्यमातून. धक्का क्रमांक 4 लागत असताना मायरा स्पोर्ट भिवंडी संघाला. जयेश पाटील बॅट्समन भावेश पवार ऑलराऊंडर पॉवरफुल है बॅट्समन मारुती चौकार आणि षटकार. एक बात है कि सैफ कुरैशी फिनिशर नहीं बन पाए, 22 रनों की अच्छी बारी खेली और आउट होके जा रहे हैं डग आउट में। आपको लगता नहीं कि सैफ ने सिर्फ एक कैच छूटने के बाद यहाँ पर फिर से कोशिश की? उंची जास्त मिळाली फटक्याला आणि त्याचवेळी मात्र जे अंतर मिळणं गरजेचं होतं ते अंतर मात्र मिळाला नाही आणि मात्र जय शिलाने मात्र अतिशय सुंदर कॅच तिथे मात्र पकडली गेली. 5वा धक्का लागत असताना 33 क्रमांकावर मायरा स्पोर्ट्स संघाला. मोमेंटम्स के लिए हम विशेष धन्यवाद विनोद शेलार साहब का भी करेंगे, रामचंद्र मागे और विनोद शेलार साहब। अब यहाँ से इक्वेशन ये है 10 गेंदे और 12 रन, व्हाट अ मैच। परंतु सैफ कुरैशीची मात्र एक मोठी इनिंग्स मात्र समाप्त झाली. 22 धाबांचं आपल्या संघाला त्यांनी योगदान दिलं. त्यामध्ये तुम्ही पाहू शकाल 2 उत्तुंग षटकार आणि एक चौकाराचा समाविष्ट. 10 चेंडूचा फक्त त्याने सामना केला आणि आता मात्र तुम्ही समीकरण पाहू शकाल 10 चेंडू शिल्लक आहेत आणि विजयासाठी आता मात्र 12 धाब्यांची गरज. हालांकि 5 विकेटें भी गिरी है। इसके बाद मुकाबला गुलाम साबिर फैम टीम, अमान स्पोर्ट बनाम बंटी स्पोर्ट, नीलेश देसले फैम टीम। उसके बाद जो मुकाबला रहेगा RD 440 विनोद पाटिल, बाड़किया पाटिल और बंटी शिल्के फैम टीम 2-2 हाथ लेंगी। दयानंद चोड़गे फैम टीम बालाजी स्पोर्ट्स से। उसके बाद मुकाबला रहेगा इस मैच की विजेता टीम और अगले मैच की विजेता टीम, और आखिर में ऊपर और नीचे की चोटी की टीमें टकराएंगी। तर चला वेल कमी घ्यायचा आहे, लगेच तुम्हाला खेळ सुरुवात करायची आहे कारण आज आम्हाला एकूण 7 सामने कव्हर करायचे आहेत. तर समीकरण तुम्ही पाहू शकाल मित्रांनो 10 चेंडू शिल्लक आहेत, 12 धाब्यांची गरज. म्हणजे असं वाटते कधी सामना झुकतो या फलंदाजी करणाऱ्या संघाच्या बाजूने तर कधी सामना झुकतोय गोलंदाजी करणाऱ्या संघाच्या बाजूने. हेच तर क्रिकेट आहे आणि क्रिकेटला म्हणूनच मित्रांनो आपण म्हणतो की हा अनिश्चिततेने काप भरलेला आहे. 10 चेंडू 12 धाब्यांची गरज. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये पाहू शकाल तुम्ही अबू साद, विशाल पाटील पुन्हा एकदा मार्गस्थ होतो. या इथे मात्र अकुट्या पद्धतीने चेंडू ऑन साईडला उडवला, चेंडू हवेत डीप मिडला, मात्र खेळाडू सज्ज आहे. जय शेलार पुन्हा एकदा चूक करत नाही. बॅक टू बॅक हा दुसरा झेल पकडत असताना आणि या मॅच मध्ये तिसरा झेल, धक्का क्रमांक 6. विवेक शेलार फास्टर विवेक. तुम्ही रिप्ले मध्ये पाहू शकाल थोडीशी शपल झाली होती ऑफ स्टंपला, परंतु या ठिकाणी बॅटच्या टोला मात्र चेंडू स्पर्श झाला आणि त्याचमुळे मात्र टायमिंग परफेक्ट झालं नाहीये आणि अतिशय जबरदस्त झेल इथे मात्र जय शेलारच्या माध्यमातून पाला आपल्याला आणि तवाब इथे मात्र 0वर महागारी परत असताना. परंतु विशाल तर मी कौतुक करेन, आतापर्यंत या मॅचमध्ये 4 गडी त्याने बाद केलेले आहेत. इसे कहते हैं क्रिकेट, नसीब बदलते देर नहीं लगती, मैच पलटते देर नहीं लगती। अब मैच पूरी तरह फंस चुका है और मायरा स्पोर्ट्स के लिए कठिनाई ये है कि सिर्फ 4 विकेट उनके हाथ में। अब यहाँ से देखना है, सुरेश पारदी अपना पूरा अनुभव झोंक रहे, 9 गेंदों में 12 रन चाहिए। इक्वेशन उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन एक बात तो है कि हैट्रिक पे आ गए गेंदबाज विशाल पाटिल। अब तक 13 हैट्रिक हो चुके हैं,
BC4 फॉर्मेट में 2 किरण पाटिल क्वार्टरल ऑफ भिवंडी, 2 हिमांशु पाटिल अलीमगढ़ एक्सप्रेस और बैकबोन ऑफ भिवंडी 2 हैट्रिक के हैं संतोष मडवी ने। LBW के हैट्रिक टेनिस इतिहास में सागर भुईर के नाम। काय जबरदस्त खेळ इथे मात्र प्रस्तावित करतोय विशाल पाटील मॅम फ्रॉम जांभूलपाडा। इथे मात्र या ठिकाणी पुन्हा एकदा एक्सप्रेस डिलिव्हरी थोडंसं दुरून करण्याचा प्रयत्न केला होता फलंदाजाने, परंतु निर्धाव चेंडूची इथे मात्र सांगता होत असताना आता मात्र सामन्यामध्ये कमबॅक करतोय महेंद्र स्पोर्ट भातवड संघ। कारण चेंडूची संख्या आता मात्र आपल्याला कमी पाहायला मिळते, म्हणजे 8 चेंडूमध्ये अजूनही विजयासाठी 12 धाब्यांची गरज। योगेश, आपको लगता नहीं कि ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा? माहिरा के पास बहुत अच्छा मौका आया था, अभी तक तो कैश नहीं हुआ है, होता या नहीं ये हम देखेंगे। तर नक्कीच मी मायरा संघासाठी एकच म्हणेन की अभी नाही तो कभी नाही, कारण संधी तुमच्यासाठी मात्र धावून आलेली आहे, त्या संधीत तुम्हाला मात्र सोनं करावं लागेल। विशाल पाटील पुन्हा एकदा इथे मात्र पुन्हा एकदा मिस टायमिंग फटका, चेंडू हवेत केलाय परंतु नो मॅन स्टँडमध्ये मात्र जाऊन चेंडू सेफ लँड होईल। जोपर्यंत डीपवरनं खेळाडू येऊन चेंडू फेक करतील तोपर्यंत मात्र या ठिकाणी 2 धावा भरपूर वेगाने पूर्ण केल्या आणि या 2 धावांनी आता मात्र भरपूर वेळ धावसंख्या स्थिर होती आणि आता मात्र पुढे जाईल 35 या आकड्यावर। तुम्ही आपल्या स्क्रीनवर पाहू शकाल ज्यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा साकारली जात आहे। वन मॅन शो माजी सरपंच ग्रुप ग्रामपंचायत वाशिरेचे आणि प्रसिद्ध उद्योजक सन्माननीय आदरणीय विश्वास शेठ पाटील आणि त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून ही स्पर्धा मात्र या ठिकाणी पाहिली तर सन्माननीय पांडुरंगजी धर्मा पाटील साहेबांच्या नेतृत्वाखाली ही स्पर्धा तुम्हाला पाहायला मिळते ओम साई वाशिरे यांच्या माध्यमातून। सामने उमेश मागे का जो पोस्टर लगा है उस पर गेंद हिट होती है तो 2000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। देखिए सुबह ठीक 12:30 बजे BC4 फॉर्मेट में दोनों टीमों को रिपोर्ट करना है। महेंद्र पाटिल फेम टीम साइंस स्पोर्ट खारबाव और असरार अंसारी फेम टीम हमजा स्पोर्ट। 12:30 बजे आपका हम 12:45 बजे टॉस करेंगे। 1 बजे कल पहली गेंद और 8 बजे तैयार हो जाइए। पहली मर्तबा पड़गा और उसके परिसर में पांडुरंग धर्मा पाटिल का तोहफा, ओम साई वाशेरे का तोहफा, रायगड बनाम ठाणे। विशाल पाटील पुन्हा आता मार्गस्थ होतोय। इथे मात्र अजून एक चांगला चेंडूची फेकी पाहायला मिळाली परंतु चेंडू निघून जातो शॉट फाईन लेगला। 1 धाव इथे मात्र फलंदाजाने कंप्लीट केली आणि अशा रीतीने 5 षटकांचा खेळ समाप्त होत असताना 45 धावांचा पाठला करताना मात्र या ठिकाणी मायरा स्पोर्ट भिवंडी संघाला मात्र घाम फोडला आहे, तो म्हणजे महिंद्रा स्पोर्ट संघाने 6 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 6 चेंडूमध्ये आता मात्र विजयासाठी धावांची आवश्यकता आहे, ती म्हणजे 9 धावा। क्या मुकाबला हो रहा है। अब तक BC4 फॉर्मेट में एक सुपर ओवर हुआ था, वो भी सीजन का पहला मैच बढ़तवाल। ये आप योगेश पाटिल PTC की आवाज़ को देख रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त। ये शुभात धुमाल जो गला खराब होने की वजह से स्कोरिंग कर रहे हैं। और इनकी कोई बात ही अलग है। सिद्धि भावे सर क्या गूगल में हैंडसम लग रहे आज। 6 गेंदे 9 रन, कुछ भी हो सकता है। देखिए इस स्थिति में योगेश बड़ा स्ट्रोक आया तो मैच झुक जाएगा माहिरा स्पोर्ट की तरफ, और इस स्थिति में अगर कोई विकेट गिरा, ये आप देख सकते हैं फारूक बर्डी मशहूर अंपायर, सिल्वर आर्म्स के नाम से क्रिकेट में जाने जाने वाले, परेश महाजन मशहूर क्रिकेटर और वंडर बॉय जयेश पाटिल। परंतु खरोखरच प्रिन्स मूवीचं मी या ठिकाणी कौतुक करेन। काय जबरदस्त या ठिकाणी टेलिकास्ट पाहतोय आपण, अगदी क्लीन अँड क्लिअरिटी। आणि मात्र खरोखरच मी कौतुक करेन रवी गुलवे असतील, त्यानंतर प्रथमेश पाटील असतील आणि त्यांची सर्व टेक्निकल टीम असेल। ऐसे ही कोई किंग ऑफ टेलीकास्ट थोड़ा बन जाता है। ये डगआउट बताया जा रहा है। देखिए 3 मिनट बचे हैं महेंद्रा स्पोर्ट, डगआउट में अभी भी कोई खुशी की लहर नहीं। बंटी स्पोर्ट कुक्षी बोर्ली संघाचे खेळाडू आहेत, तुम्ही Yes. सिरीज मॅन बबलू पाटीलला पाहू शकाल। यस वैभव। देखिए प्रतीक विषय सीजन में पहले बैट्समैन है जो 2 मरतबा बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट, सरपंच चषक वाशेरे और अंजुमन ट्रॉफी, और किरण पाटिल 2 मरतबा के बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट है। चला खेळ सुरू करायचा आहे, तुम्ही जास्त वेळ घेऊ नका प्लीज। मी महिंद्रा स्पोर्ट संघाला विनंती करतो की तुम्हाला खेळाला सुरुवात करायची आहे। 6 चेंडू आणि 9 धाब्याची गरज आणि मात्र गोलंदाज इथे मात्र षटकाला सुरुवात करेल रोशन तुंगारे मॅन फ्रॉम खानिवली। 12वें खिलाड़ी काफ़ी मशहूर है, गजा नहीं तो मजा नहीं।
लेकिन आजकल मशहूर हैं RD 4440 के यष्ट्या, यश पाटिल उर्फ यष्ट्या। हैट्रिक पे कैच पकड़ा था उन्होंने अंजुमन ट्रॉफी में, किरण पाटिल ने जो हैट्रिक लिया। काय जबरदस्त सामना इथे मात्र क्रीडा रसिकांना पाहायला मिळतोय. नेट टू नेट फाईट. प्लीज खेळ सुरू करायचा आहे. मी पंचांना सुद्धा विनंती करतोय की आपण खेळाडूंना वॉर्न सुरेश करायचं आहे. पारदी पैनलाइज किया जाएगा. यस, खेल की शुरुआत. 7 चेंडू विजयासाठी 9 धाब्यांची गरज. गोलंदाज सज्ज होतोय रोशन तुंगारे. राईट आर्म और द विकेटने आपल्या षटकाला सुरुवात करेल. पहिला चेंडू इथे मात्र पाहिला तर चेंडू मात्र जमिनीच्या साहाय्याने ट्रॅव्हल झाला. मिडविकेटच्या क्षेत्रामध्ये अतिशय वेगाने मात्र क्षेत्र चेंडूला येऊन उचलून फेक करतील. तोपर्यंत एक डाव. T4 टॅट. जसा तसा उत्तर इथे मात्र प्रतिस्पर्धी संघाला देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 5 चेंडू शिल्लक आणि आता मात्र 8 धाब्यांची गरज. बाबू खान 4 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने आगे खड़े रह के चौका दिया था, उसका वो भुगतान करते नहीं, जबकि अबू साथ 5 गेंदे. देखना है क्या चर्चा हो रही है वहां पर. अंपायर का जो निर्णय है वो अंतिम रहेगा. 5 गेंदों के लिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है कि आपके 2.5 मिनट बचे. देखना है क्या चल रहा है मैदान में. बहरहाल जो भी चल रहा है, ये नोकझोंक क्रिकेट की बहुत अच्छी लग रही. ये तू मैं क्रिकेट की बहुत ही ज़बरदस्त, और ये तमाम गर्मा गर्मी आप देख रहे हैं. क्रिकेट का इंद्रधनुष धनेश कप 2022 वाशेरे में. राजकुमार पाटील तुम्हाला खेळ सुरू करायचा आहे. प्लीज जास्त वेळ तुम्ही या ठिकाणी दौडू नका. तुम्हाला खेळात सुरुवात करायची आहे. तर पडगाव विभागातील एक लेजंड खेळाडू अर्थात भालचंद्र जाधव यांच्या माध्यमातून समालोचन कक्षाला आणि धनेश ट्रॉफी 2022ला हार्दिक शुभेच्छा आलेल्या आहेत. धन्यवाद भालचंद्र जाधव. आपलं सुद्धा मी मनापासून हार्दिक स्वागत करतो. देखिए राजकुमार मैदान में, लेकिन देखना है कि बल्लेबाजी में आज कुमार कौन बनता है. आपण पाहू शकाल अब्बू साद आणि बाबू खान हे 2 फलंदाज तुम्हाला खेळपट्टीवर पाहायला मिळत आहेत. आणि आता मात्र सामना करेल लेफ्ट आर्म फलंदाज अब्बू साद. समीकरण आहे 5 चेंडू आणि 8 धाब्यांची गरज. आणि इथे मात्र अब्बू साद या चेंडूला मात्र या ठिकाणी उचलला. या चेंडू हवेत फटका फसलाय. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली आणि समाप्त होतोय अब्बू सादचा खेळ. आणि झेल टिपला या ठिकाणी विजय पारदीने धक्का क्रमांक 7. ठाणे भिवंडी शहराची शान गणेश चषक हाय महान. ठाणे भिवंडी शहराची शान गणेश चषक हाय महान. कमाल का कैच पकड़ा. इस तरह के कैचेस आसान नहीं होते हैं. विजय पारदी को पता था अगर विजय प्राप्त करना है तो फिर ये कैच पकड़ना है. या अगोदर या पाठ्यामागे काय झालेलं आहे ते महत्त्वाचं नाही. जे करायचं आहे ते आता मात्र या षटकामध्ये आपल्याला करायचं आहे. आणि त्याच अनुषंगाने मात्र या ठिकाणी अतिशय सुंदर झेल आपल्याला विजय पारदीच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला. अच्छी मिसाल दी आपने. ये देख सकते हैं टीवी मॉनिटर पे बहुत ही खूबसूरत 14वीं का चांद. ये किसने कह दिया तेरा हमदम नहीं हूँ मैं, तुझसे किसी भी हाल में बरहम नहीं हूँ मैं. और आके वो कहने लगे रात के पहर इस 14वीं के चांद से कुछ कम नहीं हूँ मैं. नक्कीच आपल्या स्क्रीनवर तुम्ही पाहू शकाल. आणि आता मात्र तुम्ही मैदानाच्या आतमध्ये पाहू शकाल. समीकरण असं आहे की 4 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 8 धाब्यांची गरज. नवीन फलंदाज नितीन पाटील. 4-8 का इक्वेशन. व्हाट अ मैच. गजब का मुकाबला. प्लीज सहयोग करें महिंद्रा स्पोर्ट प्लीज. शेवटचा ऑफिशियल कॉल असेल आता मात्र आयोजकांच्या वतीने विले संदर्भात प्लीज सहकार्य करा. काय या दबावच्या स्थितीमध्ये या रोशन तुंगारे मात्र गोलंदाजी करतोय. पहिल्या चेंडूवर सिंगल आणि त्यानंतर दुसऱ्या चेंडूवर विकेट्सचं पतन करत असताना अजूनही वेल घेतला जात आहे. प्लीज 4 चेंडू शिल्लक आहेत. 8 धाब्यांची गरज. इथे मात्र पुन्हा एकदा मात्र एक्सप्रेस चेंडू. जागते रहो इथे मात्र आव्हान देत असताना गोलंदाज रोशन. डॉट चेंडू आलाय आणि डॉट चेंडू नंतर आता मात्र फलंदाजावर आपल्याला दडपण नक्कीच पाहायला मिळू शकेल. योगी मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि सैफ कुरैशी इतना अच्छा खेल रहे थे, क्या आपको लगता नहीं कि उन्होंने जल्दी कर दी. परंतु भावेश सर तुम्ही एका खेळाडू डिपेंडेंट राहू शकणार नाही. तुमचे 11 खेळाडूंचा मात्र चांगला परफॉर्मन्स होत असेल तर तुम्ही एखाद्या संघाला एखाद्या स्पर्धेमध्ये पराभूत करू शकता. एब्सोल्युटली. बहुत सही कहा आपने.
इथे मात्र खोलवट टप्प्याचा चेंडू फुरला डिलिव्हरी होती, परंतु चेंडू मात्र या ठिकाणी कार्पेटच्या स्थानी निघून जातो मिड विकेटला. एक धाव इथे मात्र पाहायला मिळाली आणि असं वाटलं होतं की मात्र हा सामना मैरा स्पोर्ट भिवंडी संघ मात्र एकतर्फा जिंकेल, परंतु विशाल पाळलीचं मी कौतुक करेन. 2 षटकांत त्यांनी स्पेल आताला फक्त 8-10 धावा त्यांनी खर्च केले आणि 4 गडी बाद केले आणि तिथूनच मात्र महिंद्रा स्पोर्ट संघाने या मॅचमध्ये कमबॅक केलं. यहाँ पर अब एक ही चारा रह गया है, गेंदे बची है, 2 रन चाहिए, 7 हिट आउट और गेट आउट. लेकिन मायरा स्पोर्ट ने गजब का क्रिकेट खेला. नक्कीच कौतुकास्पद कामगिरी या दोन्ही संघाची इथे मात्र आपल्याला पाहायला मिळाली, कारण अजून सामना संपला नाहीये. इथून जर एखादा मोठा फटका आला तर मात्र पुन्हा एकदा इथे मात्र या ठिकाणी कमबॅक करू शकेल मायरा स्पोर्ट भिवंडी, परंतु त्यासाठी मात्र या चेंडूवर तुम्हाला मात्र तो फटका मात्र खेळावा लागेल. तो फटका इथे मात्र येईल का पाहूया. ओरपी चेंडू आणि चेंडूला फेकून दिलाय. AK-47 टू 6 रन. कहानी में ट्विस्ट और मैच होता हुआ सुपर हिट. नितिन ने ठोक डाला है और ये देखिए यहाँ से तो मायरा स्पोर्ट हारेंगी नहीं. अब या तो मैच सुपर ओवर या तो फिर हार महेंद्रा. ये क्रिकेट है. किसको पता था कि नंबर 9 के बैट्समैन 6 लगाएंगे. मैच बराबरी पे छूटा तो सुपर ओवर. जेवढा वेगाने मात्र बंदुकीतून गोली निघते तेवढा वेगाने फलंदाज नितीन पाटीलच्या बॅटमधून हा षटकार पाहायला मिळाला. आणि आता मात्र तुम्हाला मैदानाच्या आत टीम मिटिंग पाहायला मिळते. या टीम मिटिंग कशासाठी आहे तर या एका चेंडूवर एक धाव वाचवायची आहे, ती म्हणजे महिंद्रा स्पोर्ट संघाला. सिक्सर जब लगा था तो डगआउट में तो सब खड़े रह गए थे. ये नितिन पाटिल मैन फ्रॉम रानाल एक मारा लेकिन सॉलिड मारा. ये देखिए जा रही है जा रही है जा रही है. सजनी गई साजन के घर. फटा पोस्टरवर निघला नितीन पाटील. हे दृश्य इथे मात्र आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळाला. फटा पोस्टर निकला. हीरो ही है ये, जो 2 गेंदों में 7 है. यहाँ से तो महिंद्रा स्पोर्ट हार नहीं सकती, सुपर ओवर हो सकता है. अब महिंद्रा की जो महिंद्रा का दाव है वो अब कहते हैं कि उनका सम्मान दाव पे लग गया है. ये देखिए डगआउट, खुशी का माहौल. अमीदुज्जमा खड़े हैं, तौसीफ मुस्कुरा रहे हैं. किया कुछ नहीं लेकिन जीत का तो मजा सब ले सकते हैं. जे काही या पुढील 4 चेंडूवर कमावलं होतं रोशन तुंगाराने, ते मात्र या चेंडूवर कुठे मात्र गमावलं. मैच खत्म नहीं हुआ है. पायनियर और वर्ल्ड के बीच में इस सीजन में एक सुपर ओवर हुआ है, जीता था पायनियर ने. जबरदस्त खेळ इथे मात्र पाहायला मिळतो. एक चेंडू शिल्लक, एका दाबेची गरज आणि इथे मात्र हलक्या हाताने मात्र चेंडूला पुश करतो. धाव घेण्याचा प्रयत्न, धाव इथे मात्र या ठिकाणी कंप्लीट झाली आहे आणि हा सामना जिंकला मायरा स्पोर्ट भिवंडी संघाने. अनेक अनेक अभिनंदन आणि हार्ड लक महिंद्रा स्पोर्ट भादवड. आज बड़ी टीमों की खैर नहीं है. कॉन्ग्रेचुलेशन अमीदुज्जमा एंड मायरा स्पोर्ट. हार्ड लक हार्ड लक हार्ड लक महिंद्रा स्पोर्ट एंड हार्ड लक सुरेश बारदी, संजय मात्रे. लेकिन ये मैन ऑफ द मैच अवार्ड जाता है जिन्होंने एक मारा, सॉलिड मारा, वो है नितिन पाटिल. इज ओवर टू रेशमा मैकर. मैन ऑफ द मैच नितिन पाटिल. आइए नितिन पाटिल मैन ऑफ द मैच. चेक. कॉन्ग्रेचुलेशन अमीदुज्जमा एंड मायरा स्पोर्ट. आपको जाना कहीं नहीं. अमीदुज्जमा इस बात का ध्यान रहे. इट्स ओवर टू द क्वीन वाइस रेशमा मैकर. थँक्यू सो मच सिद्दीक बाबे सर. आणि नितीन ठरला आहे सामन्याचा सामनावीर, हिरो, मॅन फ्रॉम रानळ.
प्रिन्स पाटील यांच्या शुभ हस्ते आपण देणार आहोत हे गिफ्ट हॅम्पर जे स्पॉन्सर केलेलं आहे. डबल दे दो गिफ्ट टेम्पर. अच्छा, दुसरा प्रिन्स पाटील, छोटू प्रिन्स पाटील, त्याच्या शुभ हस्ते धनेश पाटील त्यांच्या शुभ हस्ते छोटा विजय माल्या. आणि त्यानंतर स्वीट बॉक्स केक द केक क्राउन प्रशांत गोराडकर यांनी स्पॉन्सर केलेलं हे केक आलम शेख यांच्या शुभ हस्ते. नंतर परी पाटील द क्यूट लिडल परी पाटील आणि केवल पाटील यांच्या शुभ हस्ते हे ए स्पोर्ट्सची बॅग जफर पटेल भाई यांनी स्पॉन्सर केलेली. आणि परी पाटील, परी विश्वास पाटील, तिच्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी जी स्पॉन्सर केलेली आहे माननीय श्री किशोर भारत माघे, उपाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा ठाणे जिल्हा ग्रामीण. तर विनंती असेल आमान स्पोर्ट संघाला की आपण छत्रशे लगेच सजवायचं आहे. आणि बंटी स्पोर्ट कुक्षे बुर्ली संघाला विनंती असेल की आपण सलामीची जोडी इथे मात्र या ठिकाणी आपण पाठवायचे आहे. सामना सुरू असेल आणि सामना सुरू असताना इथे मात्र जे ग्रामीण संघाचे लॉट्स आहेत ते आपण या ठिकाणी लाईव्हच्या माध्यमातून पाडणार आहोत. सो हिअर विथ अस मिस्टर नितीन पाटील. पाहू शकता ए स्पोर्ट्स जाफरबाई यांनी स्पॉन्सर केलेली बॅग सगळ्यात आधी आपण दाखवूया. व्हॉट अ बॅग, व्हॉट अ क्वालिटी ऑफ दी बॅग. म्हणजे भरपूर साऱ्या तुमच्या किटची सामान ह्याच्यामध्ये राहू शकतात. आणि नितीन पाटील प्लीज, क्या बात आहे यार, म्हणजे हातातून मॅच गेलेली होती